The worksheet 3 of chapter polynomials. Now question number 1 is using factor method divide the following polynomials by a binomial. Using factor method. X square plus 3x plus 2 divided by x plus 1. Okay, and so on. So first we have to factorize the polynomial x square plus 3x plus 2. Then divide by x plus 1. First factorize the x square plus 3x plus 2 by splitting the middle term. We can split the middle term by product 2 and the addition subtraction is 3. So we can break the middle term like this: 2x plus x plus 2. 2x plus x, 3x, and product is 2x square. 2 into x square, 2x square. Now take common x in these two terms. पहले इन दोनों में से कॉमन लेंगे. इन दोनों में क्या कॉमन आएगा? 1. तो यहाँ लिखेंगे x plus 2. Now the factor is x plus 2 common. We get x plus 1. And divide this by this. It means x plus 2 and x plus 1 divided by x plus 1. The answer is x plus 2. Just cancel x plus 1. The remaining answer is x plus 2. Now the second one the same. X square minus 7x minus 18 divided by x minus 9. First the factorize x square minus 7x minus 18. It is 9 to the 18. We can break the middle term by 9x plus 2x. It is minus 7x minus 18. Minus 9x plus 2x equal to minus 7x. Common x minus 9 and 2 common x minus 9. Okay. So you get x minus 9 and x plus 2. Now divide x square minus 7x minus 18 by x minus 9. The factorization is x minus 9 and x plus 2 divided by x minus 9. Cancel. The answer equal to x plus 2. Okay. This is the आंसर ऑफ सेकेंड वन. पहले हमने क्या किया? इसको फैक्टराइज किया, 2 फैक्टर निकाले और फिर जो एक फैक्टर है इसे डिवाइड किया. तो डिवाइड करने से कैंसिल हो गया, बचा क्या? x प्लस 2. ओके. थर्ड क्वेश्चन. p स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8 डिवाइडेड बाई p प्लस 2. नाउ स्प्लिट द मिडिल टर्म. p स्क्वायर 6p, वी कैन राइट 6p. 4 to the 8, it means 4p plus 2p प्लस 8. कॉमन लेंगे फर्स्ट 2 टर्म में से. p कॉमन लिए तो यहाँ क्या बचेगा? p प्लस 4. और यहाँ 2 कॉमन लेंगे, p प्लस 4. 2 4 ज़ 8. The factorization is p plus 4 and p plus 2. This is the factorization of this number. Now write p square plus 6p plus 8 divided by p plus 2. The factor of this p plus 4 and p plus 2 and divided by p plus 2. p plus 2 cancel. The answer equal to p plus 4. Okay. Next fourth. Now the fourth is p square minus p minus 42 divided by p plus 6. Okay. The same method. Factorize 42. It means 7 6 is 42. It means 7p plus 6p. Minus 7 plus 6 minus p and minus 42. कॉमन ले लेंगे इसमें से p, तो आएगा यहाँ पर क्या? p माइनस 7. और यहाँ कॉमन क्या लेंगे? 6. ये हो जाएगा p माइनस 7. तो p माइनस 7 एंड p प्लस 6. ये इसका फैक्टराइजेशन हो गया. अब डिवाइड करना है हमको किससे? p प्लस 6 से. डिवाइडेड बाई p प्लस 6. द आंसर इज p माइनस 7 and p plus 6 divided by p plus
6. डिवाइड कर देंगे, काट देंगे, आंसर क्या बचेगा? सिर्फ p minus 7. दिस इज द फैक्टराइजेशन मेथड ऑफ डिवीजन. नेक्स्ट, y square plus 12y plus 35 divided by y plus 7. Now factorize y square plus 12y plus 35. Break into two numbers. 7 5s are 35. 7 into 5 35 and 7 plus 5 12. इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे. 7 plus 5 7y plus 5y plus 35. ओके, नाउ टेक कॉमन. क्या कॉमन निकालेंगे इन फर्स्ट टू टर्म से हम लोग? y. ये होगा y plus 7 और यहां से निकालेंगे 5 y plus 7. Now the answer equal to y plus 7. Again common y plus 7 and y plus 5. The factorization of y square plus 12y plus 35 is y plus 7 y plus 5. Now division. Y square plus 12y plus 35 divided by y plus 7. So we can write y plus 7 and y plus 5 divided by. Now cancel y plus 7. The answer equal to y plus 5. Quotient is y plus 5. Question number 6. Z square minus 10z plus 16 divided by z minus 2. Now factorize z square minus 10z plus 16. It is 8 to the 16. It means 8z minus 2z. Minus 8 minus 2, it is minus 10, and 8 into 2 16. Take z common. Z minus 8. Take 2 common, minus 2 common. The factorization of this equal to z minus 8 and z minus 2. Now division. Z square minus 10z plus 16 divided by z minus 2. It is z minus 8 and z minus 2 and divided by z minus 2. Cancel. The answer equal to z minus 8. Okay. Now 7th. The 7th is x raised to the power 4 plus 3x square minus n divided by x square plus 5. 3x square minus 10. It is 5 to the 10. The difference is 5x square minus 2x square. 5 into 2, 10 minus x square common, x square plus 5 and minus 2 common, x square plus 5. It is x square plus 5 and x square minus 2. Now the division. Divided by x square plus 5. The factors of x raised to the power 4 plus 3x square minus 10 is x square plus 5 and x square minus 2 divided by x square plus 5. Cancel. The answer is x square minus 2. Okay. Next, 8th question. X square minus 7x plus 12 divided by x minus 4. Factorize x square minus 7x. Minus 7, 3 into 4. 3 4s are 12. It is 3x minus 4x plus 12. X common, x minus 3 and minus 4, x minus 3. Divided by 4, it is 3. The factorization is x minus 4 and x minus 3. Now the division. It is x minus 4 and x minus 3 divided by, cancel x minus 4. The answer is x minus 3. This is a factor method
Next question is question number 2. The question number 2 is using long division method, divide the following polynomials by binomial and check your answer. Now divide and check your answer. Okay. 4p cube minus 4p square plus 6p minus 5 by 2 divided by 2p minus 1. देखिए डिवीजन कैसे करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड 2p माइनस 1. पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लगाएंगे जबकि ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है. ये क्वेश्चन क्या है, जो डिवाइडेंड है ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, डिवाइजर भी स्टैंडर्ड में है. अब देखिए 2p में हम लोग क्या मल्टीप्लाई करें 4p क्यूब आ जाए. सबसे पहले हमको यही सोचना है कि 2p में क्या मल्टीप्लाई करें कि 4p क्यूब आ जाए, यानी हम मल्टीप्लाई करेंगे 2p स्क्वायर. देखिए 2p इंटू 2p स्क्वायर इज 4p क्यूब. नाउ 2p स्क्वायर इंटू माइनस 1 minus 2p square. Okay, first number this. Subtract means change the sign. जब भी सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन हमेशा माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस. फर्स्ट टर्म हमेशा कैंसिल करना है. अब ये क्या बचेगा, माइनस 4p स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर, इट इज माइनस 2p स्क्वायर. प्लस माइनस ऑलवेज माइनस. द नेक्स्ट टर्म इज 6p. फिर यही 2p में क्या मल्टीप्लाई करें कि माइनस 2p स्क्वायर आ जाए. माइनस ओनली p. p इंटू 2p इज 2p स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर. माइनस माइनस प्लस p. अब फिर अगेन साइन चेंज, माइनस तो प्लस, प्लस माइनस, ये कट गया. 5p माइनस 5/2. 5p माइनस 5/2. नाउ मल्टीप्लाई. देखिए अब 2p में क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारा 5p आ जाए, तो हम लोग को क्या करना है 5/2 का मल्टीप्लाई करेंगे. सिर्फ 5/2 का मल्टीप्लाई करें तो 2 कैंसिल हो गया, 5p आ जाएगा. तो हम लोग को क्या मल्टीप्लाई करना है 5/2. इट इज 5p एंड 5/2 बन जाए 5/2 यानी माइनस 5/2. साइन चेंज, the remainder equal to 0. Okay, now you can check yourself. Dividend equal to divisor into quotient plus remainder. So just you can multiply divisor into quotient plus remainder. That should be equal to this dividend. Okay, now second division. x माइनस 6 प्लस 15x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3x. देखिए इसमें ना डिवाइडेंड और ना ही डिवाइजर, कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है. तो डिवाइजर को हम लोग क्या लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में 3x प्लस 2. अरेंज कर दिए डिसेंडिंग ऑर्डर में. सेम डिवाइडेंड को क्या लिखेंगे 15x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इन द स्टैंडर्ड फॉर्म. नाउ स्टार्ट डिवीजन. 3x में क्या मल्टीप्लाई करेंगे 15x स्क्वायर आ जाए, तो हम लोग क्या मल्टीप्लाई करेंगे 5x. 3x इंटू 5x 15x स्क्वायर एंड 2 इंटू 5x इट इज 10x. सिंपल. नाउ सब्ट्रैक्ट. इट इज माइनस 9x माइनस 6. अब अगेन माइनस 3x में क्या मल्टीप्लाई करें माइनस 9x है, it is only minus 3. 3 3s are 9x and 3 2s are 6. Just subtract, change sign, minus plus, it is minus plus cancel, it is also cancel. The answer is, quotient is 5x minus 3 and remainder equal to 0. Now the third division. This is the third. 4x cube minus 37x square plus 52x minus 15 divided by 4x minus 5. Okay, now start the division. 4x minus 5. It is 4x cube minus 37x square. It is in the standard form. ये तो standard form में है, हमको कुछ नहीं करना है, जस्ट अपना डिवीजन स्टार्ट करना है. 4x में क्या मल्टीप्लाई करें 4x क्यूब आ जाए, सिर्फ x स्क्वायर. 4x इंटू एक्स स्क्वायर इज 4x क्यूब. अब क्या करते हैं इस एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई इसमें भी करेंगे
यानी ये -5x², यानी इसमें इसका मल्टीप्लाई और इसका इसमें मल्टीप्लाई, जस्ट रिवर्स, मल्टीप्लाई एंड मल्टीप्लाई। फिर उसके बाद साइन चेंज, ये माइनस हो गया और ये हो गया प्लस। अब देखिए -37 + 5 इट इज -32, एक प्लस और एक माइनस है तो घटा देंगे और बड़ा नंबर है उसका साइन लगा दिया, +52x। फिर वही इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाए -8x, -8x, देखिए -8x × 4x -32x² + 40x। 40x कहां से आया, -8x - 5 इट इज 40x। अगेन चेंज द साइन, ये क्या बचेगा 12x, और यहां से क्या उतारना है हमको -15। देखिए उतारने में एक टर्म या 2 टर्म हम एक साथ कितने भी उतार सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अब 4x में कितने का मल्टीप्लाई करें, 12x आ जाए, सिर्फ 3 का, ओनली +3, इट इज 3 4 = 12x -15। सेम साइन चेंज, both term are cancel, it means remainder equal to 0 and quotient is x² - 8x + 3. Okay, the next question, देखिए ये नई तरीके का डिवीजन है, y³ -8 को डिवाइड करना y -2 से। देखिए ये थोड़ा सा डिफरेंट है, देखिए कैसे डिफरेंट है। अब y³, अब y में क्या मल्टीप्लाई करें, y³ आ जाए, सबको पता है y² का मल्टीप्लाई करेंगे। जब y² का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये तो y³ हो गया, और जब -2 में करेंगे तो ये -2y² हो गया। फिर अगला स्टेप होता है साइन चेंज। अब देखिए ये दोनों तो आपस में ना ऐड होंगे ना सब्ट्रैक्ट होंगे, क्योंकि डिफरेंट टर्म्स कभी ना ऐड होते हैं ना ही सब्ट्रैक्ट होते हैं, लाइक टर्म्स ही होते हैं। तो आगे आप लोग को स्टैंडर्ड फॉर्म में उतारना, तो पहले y² उतरेगा, उसके बाद उतरेगा -8। फिर सेम, फिर क्या मल्टीप्लाई करें, 2y का मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 2y² -4y। फिर साइन चेंज करेंगे, ये क्या बचेगा 4y -8, फिर +4 का इंटू कर दो तो क्या हो गया 4y -8। साइन चेंज कर देंगे, रिमाइंडर 0। इसमें क्या हुआ, एक्स्ट्रा टर्म आया, लेकिन उसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में उतारते हुए चले गए। तो क्वेश्चन हो गया y² + 2y + 4 एंड रिमाइंडर इक्वल टू 0। नेक्स्ट 29z - 6z² -28 डिवाइडेड बाई 3z -4। तो फर्स्ट अरेंज दिस इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, -6z² + 29z -28, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म, एंड डिवाइड बाई 3z -4। देखिए अब क्या मल्टीप्लाई करें 3z में किया जाए, एक तो माइनस का करना पड़ेगा, 3 × 2 2 का करना पड़ेगा, और एक z का करना पड़ेगा, यानी -2z। जब -2z का करेंगे पहला टर्म तो यही आ जाएगा, -2z -4 यानी +8z। जस्ट चेंज द साइन। 21z, 29 - 8 इज 21z -28। तो 3z में क्या मल्टीप्लाई होगा 7 +7। फिर चेंज साइन, रिमाइंडर इज ऑल्सो इक्वल टू 0 एंड क्वोशिएंट इज -2z + 7। नेक्स्ट, द नेक्स्ट इज 12z³ + 4z + 3z² + 1 डिवाइडेड बाई 4z + 1। तो 4z + 1 ठीक है, अरेंज है, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में, लेकिन डिवाइडेड अरेंज नहीं है। क्या आएगा सबसे पहले 12z³ आएगा, फिर स्क्वायर फॉर्म आएगी, फिर 4z, फिर +1 एंड मल्टीप्लाई 4z × 3z²
3z² का दोनों में इंटू करेंगे तो पहले में आएगा 12z³ और दूसरा होगा 3z²। दोनों के साइन चेंज और दोनों कैंसिल। अब उतारेंगे क्या, 4z + 1। अब तो सेम 4z में 4z लाना है तो किसका इंटू होगा, 1 का। तो 1 का इंटू करेंगे तो सेम नंबर आ जाएगा। साइन चेंज कर देंगे, घटा देंगे, रिमाइंडर हो गया 0। नेक्स्ट चलिए 8th वन, 8x² - 2 - 3x + 12x³ डिवाइडेड बाई 4x² - 1। पहले अरेंज करते हैं इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में। यहाँ क्या आएगा, 12x³, फिर 8x², फिर -3x -2। अब डिवीजन शुरू करेंगे हम लोग किससे, 4x² - 1 से। फिर वही प्रोसेस, क्या मल्टीप्लाई करें, 3x का मल्टीप्लाई कर दें। 3x × 4x², 12x³ एंड -3x। अब लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म अरेंज करेंगे। 3x x के नीचे आएगा, फिर वही साइन चेंज, ये दोनों कैंसिल हो गए, सिर्फ बचेगा 8x² - 2। क्या मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, सिर्फ 2 का, क्योंकि 2 × 4x², 8x² - 2। रिमाइंडर इक्वल टू 0 and quotient is 3x + 2. Now question number 3. Third question is, using long division method check whether the second polynomial is a factor of the first polynomial. चेक करना है कि सेकंड पॉलिनोमियल फर्स्ट का फैक्टर है या नहीं। अगर रिमाइंडर 0 इट मीन्स इट इज अ फैक्टर, और अगर रिमाइंडर बचेगा तो इसका फैक्टर नहीं है। सेम डिवीजन प्रोसेस, x⁴ - 16 डिवाइडेड बाई x + 2। x⁴, the first x⁴ it means multiplied x³ x³ into x, x⁴ plus 2 into x³, 2x³। साइन चेंज कर देंगे, क्या आएगा, -2x³ -16 अगेन -2x² मल्टीप्लाइड बाई -2x² 2x³ -2x² इंटू 2 4x²। साइन चेंज करेंगे, ये आएगा 4x² -16। फिर x में 4x² लाने के लिए मल्टीप्लाइड बाई 4x, 4x² + 4 × 2 8x। साइन चेंज, -8x -16 मल्टीप्लाइड बाई 8, -8x -16। साइन चेंज, कैंसिल, रिमाइंडर इक्वल टू 0। Yes, x + 2 is a factor of x⁴ - 16. Next is z⁴ - z³ + 3z² - 2z + 2 divided by z² + 2 and check the remainder. z² multiplied by z², we get z⁴ 2 into z², it is 2z²। चेंज द साइन, ये कैंसिल हो गया, ये क्या बचेगा, -z³, 3z² - 2z² z², नेक्स्ट टर्म इज 2z। नेक्स्ट मल्टीप्लाइड z² बाई -z, इट इज -z³ -2z। -z मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में, प्लस प्लस, ये भी कैंसिल, सिर्फ z² + 2 +1 से मल्टीप्लाई करें क्योंकि z² + 2 है ये, रिमाइंडर इक्वल टू 0। इट मीन्स यस
z square plus 2 is a factor of given polynomial. Factor of given polynomial. जो भी polynomial ऊपर दिया हुआ है ये इसका फैक्टर है. Now third is x cube minus 4x square minus 3x plus 5 divide by x minus 3. Check x minus 3 is a factor of this polynomial. x minus 3 से अब डिवीजन शुरू करेंगे. x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5. डिवीजन का प्रोसेस सेम है, कोई सा भी क्वेश्चन बना लें सब में वही है. फर्स्ट में क्या मल्टीप्लाई करें, x स्क्वायर, तो x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर. फिर अगला स्टेप वही, साइन चेंज, बचेगा क्या, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x. फिर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्स का, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x. साइन चेंज, माइनस 3x इट इज माइनस 6x प्लस 5. अब क्या मल्टीप्लाई करना होगा, माइनस 6 का इसमें इंटू करेंगे तो माइनस 6x प्लस 18. साइन चेंज करेंगे, रिमाइंडर आ गया माइनस 13. इट मीन्स रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0. देयरफॉर x minus 3 is not a factor of polynomial या फिर given polynomial. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. अगर रिमाइंडर बच गया तो इसका मतलब फैक्टर नहीं है, और अगर रिमाइंडर 0 आ जाता तो यस इट इज ए फैक्टर. 4p क्यूब माइनस 12p स्क्वायर माइनस 37p माइनस 15. चेक करना है 2p प्लस 1 इसका फैक्टर है या नहीं. फिर वही डिवीजन शुरू करेंगे. 2p में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 2p स्क्वायर. अब 2p स्क्वायर का दोनों में इंटू करके लिखते हैं 4p क्यूब प्लस 2p स्क्वायर. साइन चेंज कर देंगे तो माइनस 12 माइनस 2 इट इज माइनस 14 माइनस 37p. अब कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 में माइनस 7p इट इज माइनस 14p स्क्वायर माइनस 7p. साइन चेंज, इट इज माइनस 30p माइनस 15. नाउ मल्टीप्लाइड बाई माइनस 15. माइनस 15 टू जा 30p माइनस 15. साइन चेंज, रिमाइंडर इक्वल टू 0. इट मीन्स 2p plus 1 is a factor of the given polynomial. Okay, the next one, the next is 4q cube minus 6q square minus 4 cube plus 3. चेक करना है कि 2q माइनस 1 इसका फैक्टर है या नहीं. ठीक है, तो सेम डिवाइड करेंगे 2 इंटू 2 4. क्यूब लाने के लिए q स्क्वायर का मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 3 पावर 4 क्यूब माइनस 2 क्यूब स्क्वायर. फिर वही साइन चेंज, माइनस 4q स्क्वायर माइनस 4q. फिर मल्टीप्लाई माइनस 2q प्लस 2q प्लस माइनस, फिर माइनस 6q माइनस 6q. जब साइन चेंज हो जाता तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ नए वाले साइन की वैल्यू है. प्लस 3 मल्टीप्लाई कर दें माइनस 3 का तो माइनस 6q प्लस 3. फिर रिमाइंडर 0, यानी इट मीन्स इट इज इक्वल टू, इट इज ए फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल. लिखेंगे 2q माइनस 1 is a factor of 4q
4q क्यूब माइनस 6q स्क्वायर माइनस 4q प्लस 3। नेक्स्ट, अब इसका चेक करना है हमको 20x स्क्वायर माइनस 32x माइनस 16, इसका 5x प्लस 2 फैक्टर है या नहीं। तो 5x प्लस 2 से जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 20x स्क्वायर माइनस 32x माइनस 16। अब डिवीजन शुरू करें, 5 में कितने का इंटू करना है, 4x का मल्टीप्लाई कर दें दोनों में तो क्या आ जाएगा, 20x स्क्वायर एंड 4 इंटू 2 8x। फिर साइन चेंज कर देंगे, ये क्या हो गया, माइनस के 40x माइनस 16। फिर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 8 का, 8 5 जो 40x माइनस 16। ओके, माइनस 40x है, साइन चेंज, ये भी इसका फैक्टर है क्योंकि रिमाइंडर 0 आ गया। यस, 5x प्लस 2 इज ए फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। नेक्स्ट है 12a स्क्वायर माइनस 7a माइनस 2, 4a माइनस 2, 4a माइनस 1, सॉरी 4a माइनस 1 चेक करना है कि इसका फैक्टर है या नहीं। ठीक है, चेक करते हैं, डिवीजन कर देते हैं, पता चल जाएगा फैक्टर है या नहीं। अब क्या मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, 3a का इंटू कर दें, 4 इंटू 3 12a स्क्वायर माइनस 3a। साइन चेंज कर देंगे, ये हो जाएगा माइनस 4a माइनस 2। फिर 1 का मल्टीप्लाई माइनस 1 का करेंगे तो माइनस 4a प्लस 1। साइन चेंज, minus 2 minus 1 it is minus 3. It means remainder is not equal to 0. Therefore 4a minus 1 is not a factor of 12a square minus 3a minus 2. Last, अब लास्ट ये 6x क्यूब प्लस 19x स्क्वायर प्लस 13x प्लस माने इट मीन्स माइनस 3 का 2x प्लस 3 फैक्टर है या नहीं। 2x प्लस 3 इसका फैक्टर है या नहीं। तब डिवीजन शुरू कर दें, क्या मल्टीप्लाई करें 2x में, 3x स्क्वायर, तो 3 2 जा 6x क्यूब, 3 3 जा 9x स्क्वायर। फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे, ये हो जाएगा 10x स्क्वायर प्लस 13x। अब क्या मल्टीप्लाई कर दें इसमें, 5x, तो 5 2 जा 10x स्क्वायर प्लस 5 3 जा 15x। फिर सब्ट्रैक्शन कर देंगे और साइन चेंज हो जाएगा, माइनस 2x माइनस 3। तब मल्टीप्लाई तो माइनस 1 का करेंगे तभी माइनस 2x आएगा, 2x इंटू माइनस 1 माइनस 2x माइनस 3। साइन चेंज कैंसिल हो गया, रिमाइंडर इक्वल टू 0। इट मीन्स 2x प्लस 3 इज ए फैक्टर ऑफ, if remainder 0 it means it is a factor of given polynomial. Okay, given polynomial. Worksheet 3 is finished now. Okay, thank you.